Okay, Veronica, what do you know about digital marketing? Digital marketing is promoting your e-commerce business or any business of yours via internet or via digital means. Yeah, that is what we also do. And this session is for web development. So, Sachin, what do you know about web development? Are you there, Sachin? Yes, sir. Yes, Yeah. What do you know about web? sir. सर वेब डेवलपमेंट बेसिकली, यस सर, वेब डेवलपमेंट बेसिकली सर, इसको एक एग्जांपल से ले तो अपना अपन कोई स्मॉल बिजनेस यूज कर रहे हैं या फिर अपनी कोई चीज़ है जो अपन अपने एरिया में तो शो कर सकते हैं इजीली, लेकिन अपना को वर्ल्ड वाइड या कहीं पे भी अपनों को दिखाना है, तो उसके लिए सर वेब डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी या फिर ऐप की पड़ेगी, ताकि अपना स्मॉल जो बिजनेस है उसको लार्ज कर सके सर। तो ये बेसिकली मतलब क्रिएट एंड मेंटेन डिजाइनिंग पार्ट है सर, Okay, ताकि creating, designing, whatever. What do you think about it, Raju? Raju Dubey? सर वेब डेवलपमेंट हम लोग कुछ भी करते हैं, एक कंटेंट को जो कि एक पर्सनल कंटेंट होता है जो खुद के पास होता है, लेकिन एक ऐसा कंटेंट हम लोग क्रिएट करते हैं जो सब लोगों के बीच घुल मिल के उन लोग को भी दिखा सके और मिल के कुछ काम किया जा सके। इसलिए सर हम लोग वेब डेवलपमेंट करके एक साइट क्रिएट करते हैं जिससे मल्टी वेब में और वर्ल्ड वाइड वेब में सबके थ्रू कनेक्ट हो पाए और सबकी तरह मिल के काम कर पाएँ, सबको अपना कंटेंट दिखा पाएँ और डाटा भी गैदर कर पाएँ। Okay. Okay. And what do you think about it, Visha Weber? See, basically, asked for the digital marketing at the initial stage because we are working for digital marketing agency. The web development which we'll be doing is more related to digital marketing. Development is basically creating a web platform, usually websites or landing pages or blogs or whatever, which are on the World Wide Web, which can be accessed by anybody. They basically help to create a brand. Yeah. They help to create a brand. They help to create our presence. So I suppose so. All of you are here for web development internship, and I hope you have a little knowledge about web. So I'll start with that. I'll start with the scratch, and this will be a very, very, very easy class today. But within it, I'll cover WordPress and I'll try to create a website in this. Okay. Please type in comment now how many of you know how to create a website. If anybody knows how to create a website, type here. Sachin Akwan, you know. Then Madhukar, you know. Raju Dubey knows. Veronica knows. Rupesh. Okay. Sachin, what platform you use to create a website? यस सर, वर्डप्रेस सर। WordPress, very good. So you have a basic knowledge of WordPress. So what type of यस website are you सर, creating? सॉरी सर। Means what type of websites you are creating? You are creating a dynamic website यस or सर, यस सर, ई कॉमर्स वेबसाइट सर, एंड एक बेसिक वेबसाइट आई हैव क्रिएटेड, एंड वन वन में दो या तीन वेबसाइट पे पहले भी काम कर चुका हूँ सर। okay, okay, very good. Okay, थैंक Dhiren यू सर। Madhukar, what type of websites have you created? So I have created a travel agency website. Okay, I can share that link also in chat box. okay, share the link later. So okay, sir. Yeah, Sir, and I have used Elementor in that, and Updraft Plus and many more plugins. okay. Okay, sir. Okay. What about you, Veronica? So until now, I have not used WordPress, but I used to use HTML, PHP, and CSS Bootstrap to create websites, e-commerce websites. E-commerce websites. Okay. Basically, the platform which we will be using is WordPress. So, in case you are experts, that is very good. I won't be creating a means very what you say dynamic website today. I'll be creating a easy website today, and then as required, we'll go for it means for higher platforms. Right now, starting my presentation, I supposed to just 5 and I'm sharing my screen. Okay. If anybody of you have a question, you can ask me.
Is my screen visible to every one of you? Yes, sir. Yes, sir. So basically, this is a web development overview session 1. In this, the presenter is my name is Madhukar Chopra. The computer presenter. Please note, this is optional and free. This I want to make it clear. We are not charging anything, and it is not compulsory to attend it. Attendance is overview does not guarantee selection. So if you have attended all the overviews, it is not that you will be getting selected. This will cover basic topics of web development. Very advanced topics won't be covered. This will cover tools you need to learn. This will not be any paid course after this. It is not something like that I show you a free tutorial and then I ask you to buy something. This is not that type of webinar where anything will be asked for you to pay or something like that. Totally, we maintain that we only pay and we do not take any money from any of the interns. So I suppose so I have made that clear. So is it clear to everybody of you? Yes, sir. Yeah. So what is a website? As you can see below, here, you can see this is a home, then this is home page again, then there is a who we are, about us page, get involved page, about us page. There are 3 or 4 pages you can see here. Is it visible? Yes, sir. So there are multiple pages here in the website. So website can be a one page website or it can be a multiple page website. There can be different type of website, as you said, e-commerce website, blog website, doctor's website, salon website. Like this is a, I suppose, so social media pet website. This is a travel website. This is a blog with landing pages and all. Clear? If you have any questions, just ask. Yeah. Yes, anybody want to say anything? You know what is the difference between a web page and a website? Rupesh, you know what is the difference between a web page and a website? सर वेब पेज से मिलके सर वेबसाइट बनती है सर. Huh? वेब पेज से मिलके ही वेबसाइट बनती है. Yeah. Web pages, there are many pages in one website. So एक पेज को website बोल सकते हैं if there is single page website. Normally a website has multiple pages. So website is not name of a single page. Clear everybody? Yes, sir. Yeah. What is the difference between a blog, a web page, and a website? Any idea? Who can say that to me? Veronica? What is the difference between a blog, web page, and a website? So I think a blog is where someone shares their views or whatever from their side, and I think it's editable on either sides. And website is Either side from means the user can also give his input on a blog. I think so. they can comment. And yes, they can comment. And a website is purely for usage, and the server side can control the website. Okay, that is your thought. What about you, Sonabar? Are you there? Sonabar, Sunny, Shamim? What do you think about? You know any difference between a blog, web page, and a website? If you do not have a mic, you can type out here. Yes, actually, yeah, sorry, but there was some network issue there. Okay. Sir, actually, blogs are a type of website.
Yeah. And the thing is, with the blog, you can actually update it with the new content. But with the website, when you need to update it, there has to be a set of processes that has like basically it's a lengthy process of updating a website, and you don't generally do it until a major change is needed. Yeah. But a blog is a place where every day it's being updated with the new paths and Yeah. new things. Blog is updated regularly. Blog is basically has a fixed layout or fixed single, whatever you say in WordPress. Uh, Websites, other pages of websites are not normally updated regularly, whereas blog is updated regularly. That is my thought. So, like a contact us page, that is a page of a website. This contact us will not change regularly. If he is having a phone number, occasionally it may change, but it's not a regular change. The about us page will not change regularly. What is the detail given in the about us, about the company or about the person or whatever it is, it will be there for a long period of time. But when we talk about a blog, you can create a new blog every weekend, every 2 days, every 3 days, or twice daily. It depends upon you. New blogs will be created. It is not that old blog will be again and again edited, but blogs are continuously added, whereas web pages are not normally added. Clear? Secondly, as it was said, the blog has a layout fix, so there is not much changes in the layout of a blog, whereas different web pages have different layouts and different changes. Clear? Any questions from anybody? As I have shown you, there are many portions of the website: about, blog, contact, guide, home, landing, menu, shop. Now, blog is a page which I told you is a part of a website, but it is regularly updated and design is fixed. And similar to it, there is a shop in which products are regularly updated and removed. The blog and shop, these are basically dynamic posts. They are usually dynamic. Dynamic means they are changing. The others are more or less static. Clear? Any questions about it from No, anybody? sir. This is just for your knowledge, nothing to do with teaching today. Out of the total website market share, 36.2% is covered by means WordPress. That is one No, third of sir. it. Yeah. Any questions? So, out of the total coverage, one third nearly is covered by WordPress. So, it is a very popular website development platform. There's Joomla, Shopify, Drupal. And what is the basic reason that this is so popular? Any idea, Aditi? Are you there? Yes, sir. What are the basic reasons that WordPress is so popular? Any idea? No, sir. Okay. So who else who have secreted? Dhiren Madhukar, what are the reasons it is very popular, Dhiren? Sir, it is easy to use, and Okay. yes, sir, it is easy to use. Just drag and First drop thing, it is option. easy to use. The drag and drop comes with the page builder, but normally it is very easy to use. So Okay, sir. this is not a very tough thing. Secondly, the WordPress platform itself, the software itself is free or open source. So unless you want to, you don't have to pay anything. I'll show you how to create a full website here from totally free softwares. Means WordPress will be free, the plugins will be free, the designing will be. I'll show you a complete website created today for free. Right? Okay, sir. You know what is a domain name and what is a hosting. This I want to discuss in detail. I'll discuss in detail. So what is a domain name? Any idea, Raju? Raju Dubey, what is a domain name? Okay, Raju Dubey is, I suppose, is not. Sachin, what you want to say something? What is the domain name? यस सर, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है सर. हाँ. जैसे घर के आगे एक नेम प्लेट लगता है, एक एड्रेस होता है, उसी तरह वेबसाइट हैज अ डोमेन नेम.
So you cannot have a website without domain name because you have to type. Like if you want to go for Madhukar Chopra, my name, so you have to have a domain name. That like madhukarchopra.in. So that way you know where to go or where to look. So I'll just give you example. Say edutech multimedia website. जैसे हम लोग को यहाँ पे टाइप करेंगे, और my screen is not visible. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Here it is in website, right? If you go below also, here is madhukarchopra.in. If you click on this link, the page will open and you can see the link out here. What is written here? Can anybody say? Performing brilliant. Madhukar Chopra, sir. madhukarchopra.in. Here, this side. Oh, sorry. Yeah, what I've copied. Now, when I copy it full, then I'll show you the part of that total. It is https://madhukarchopra.in. Can you see that? That is a full website link. Is it clear or visible? Any problem with anybody? Now, if you see that links have multiple portions, and if I want to go for say education, training and teachers empowerment, and I click it here, then I copy it and paste it, then this page's link is https://madhukarchopra.in/teachers empowerment. Is it visible to everybody? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, please reply because I don't know if I'm audible or not, or because I'm not seeing your faces, right? So there is a domain name and there is a hosting, and in this domain name I'll be talking about more about the domain and then I'll come to hosting. The address to type in the web page is known as URL, Uniform Resource Locator. Now this is http mymarketingiz.best.in about. If I copy this, I click on this, page will open. You can see this page visible. Yes, sir. Now this is the link, and this is address with a subdomain. First part is always a URL protocol. http:// is a URL protocol. It tells basically what to do. Open a file, open a website, open a other document, text document. This http:// basically tells it to go online to search for a web page, right? In this case, mymarketingisbest.net. This .net is domain extension. .net is what? Domain extension, which is not given here. Isbest.net is domain name. My marketing is subdomain, and about is path name. So if I come here, Madhukar Chopra, basically it is my name. madhukarchopra.in is the domain name. .in is the extension. http:// is the protocol. Yes, sir. India. Yeah, it is not, yeah, it is for India, but .in. So madhukarchopra.in is domain name. I suppose so. Whoever knows it, for them it is pretty easy. Whoever doesn't know about this, for them it will take time to understand. So basically,
two of you haven't understand, just type explain it in detail, so I'll explain it more. If everybody has understood, it is good. Who have understood it, just type yes. Sachin Agarwal understood. What are your others? You have not understood? Comment over your head. Okay, Maneka, you also clear. Karan, have you understood? Okay, Karan, you have not understood. Okay, Karan, what is the problem? Basically, what is the problem here? Means, क्या समझ में आया आपको? What have you understood up till now? So I can explain it in more detail. वो समझा नहीं थोड़ा सा So मैं आपको वापस समझाने की कोशिश स्टार्टिंग से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए या मैं आपको फिर समझाता हूँ. बेसिकली इफ यू मींस कंफर्टेबल इन हिंदी, ये मधुकर चोपड़ा डॉट वेबसाइट मेरी वेबसाइट है. इसको अगर खोलना होगा तो उसके लिए कई पोर्शन होते हैं. कौन से पोर्शन होते हैं? पहला पार्ट है HTTPS. HTTPS का मतलब है, ये बोल रहा है कि सिक्योर सर्वर है. यहाँ पे HTTPS नहीं होता तो नॉन सिक्योर होता. तो पहले अपने को ये पोर्शन देना पड़ेगा. उसके बाद जो नाम आपने चूज किया वो मिलेगा. मधुकर चोपड़ा .in है, इसमें .in एक्सटेंशन होता है. इस एक्सटेंशन को अपने खरीदना पड़ता है, लेकिन अपनी डोमेन पूरी होती है मधुकर चोपड़ा .in, या इसके अंदर है isbest.net, ये डोमेन नेम है. मतलब जो फुल स्टॉप के पहले और थोड़ा सा बाद में आता है वो डोमेन नेम होती है, राइट. उसके बाद अगर कोई दूसरा पेज होता है तो उसका एक पाथ होता है. तो दैट इज द वे. आई सपोज जिसको आता है, whoever knows it, it is very easy for them. whoever doesn't know it, it will take time. अब कभी कभी सब डोमेन भी आ जाती है. जैसे यहाँ पे माई मार्केटिंग, दो फुल स्टॉप्स आप देख रहे पाएंगे. वन इज हियर एंड वन इज हियर. Two periods are there. Full stop, period, whatever you say. So this is basically a subdomain. What is it? Subdomain. So इस पेज में वापस आता हूँ. तो इस URL में 4 पार्ट है. http:// is the protocol. isbest.net is domain name. इस domain name के अंदर भी this what you say, ये वाला जो पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन. दिस इज बेसिकली एक्सटेंशन. बट द फुल डोमेन इज best.net. सब डोमेन इज माई मार्केटिंग. और उसके बाद अगर और भी अंदर में जा रहे हैं तो अबाउट इज द पेज. अबाउट इज अ पाथ नेम. इट कैन बी more डिटेल्स. इट कैन बी अबाउट आफ्ताब अंसारी. सो दैट विल बी द फुल पाथ. तो ये यूजुअली आपको पता होना चाहिए बेसिकली जब चलाते हैं. प्रॉब्लम होगा तो इलेक्शन. कुछ समझ में आया? करण, सिंपल, अ बिट क्लियर? समझा. यस यस. Anybody has any problems, just ask me, because if you ask me then only I'll be able to explain it to you. Okay. Now what is CMS? WordPress is a CMS which you'll be using. There are hundreds of platforms which are there, as I have shown you previously. WordPress, other CMS, Joomla and all. Second thing is hosting. I have not touched hosting. You know what is a hosting? You know what is a hosting? यहाँ सचिन आप बता सकते हैं hosting क्या होती है? या सर किसी भी वेबसाइट का बेस होता है सर, जहाँ पे स्टोरेज को कलेक्ट करना होता है. Domain name is just like a address. Like address is 33 BRBB Road, Canning Street. That is the address. लेकिन वो जो जगह होती है उसको बोलते हैं hosting. So there is a web space there. 1 GB, 2 GB, 100 GB, 500 GB, 50 MB, whatever the space it is occupying, or the space you are getting is hosting. So when you want to create a website, you need a domain name and a hosting. So whoever knows it, it is good. Whoever doesn't know it, I am trying to explain it to you that a domain name and a hosting is required. So domain name लेने से जगह नहीं मिल जाती. Domain name खाली नाम होता है. Now that name plate अगर आप बना लेते हैं तो उसको किसी जगह लगाना पड़ता है. You have to put that name plate some place. The place can be big, the place can be small.
सो यू हैव टू हैव अ डोमेन नेम एंड अ होस्टिंग. सो इससे क्या होता है, आपको डायरेक्शन मिलता है कि कहाँ पे जाना है, वेयर द प्लेसेस. एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम विद दिस? शैल मूव फॉरवर्ड. Aditi Babbar, you understood that? Yes. Yes. Okay. Okay. Okay, Raju Dubey, are you there? Raju Dubey, are you Yes, there? I am here. Yeah. Can you explain me a difference between a web means hosting and domain name? Domain name और hosting में क्या फर्क है? सर डोमेन नेम एक आइडेंटिफिकेशन है किसी चीज़ को पहचानने के लिए, किसी चीज़ के लिए लगा हुआ रहता है. और सर होस्टिंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से सर साइट को हम लोग होस्ट कर सकते हैं ऑनलाइनली. ठीक है. सर एक होस्टिंग होता है लोकल होस्टिंग, एक होता है ऑनलाइन होस्टिंग. सर तो ऑनलाइन होस्टिंग के लिए फिर हम लोग करेंगे सर यही होस्टिंग. तो अच्छा, और पंकज यादव, आर यू देयर? पंकज यादव, आर यू देयर? आप हैं यहाँ पे? इफ यू आर नॉट एबल, यू डू नॉट हैव अ माइक. तो मिस्टर यादव, ये मेरे को बताइए, 30 GB स्पेस आपको मिल रही थी, ये होस्टिंग में मिलती है, डोमेन में मिलती है? होस्टिंग है. और डोमेन में क्या मिलेगा? एड्रेस नेम. सो होस्टिंग बेसिकली इज द स्पेस एंड डोमेन इज एड्रेस. वेरी गुड. यस. उसके बाद मैं CMS की बात करूंगा. व्हाट इज CMS? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज CMS? किसको आइडिया? CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है सर. किसी पर हम पोस्ट में कंटेंट लिखते हैं या फिर किसी पेज पे कंटेंट लिखते हैं तो उसको मैनेज हैंडल करता है सर. यस. ठीक है. तो CMS इज कंटेंट मैनेजमेंट सीएमएस. बहुत सारे CMS हैं जिसके अंदर वर्डप्रेस है, जूमला है, शॉपिफाई, देयर आर मेनी CMS, बट वी विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन वर्डप्रेस टुडे बिकॉज मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग काम है उसमें मेरे वर्डप्रेस हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. तो आई एम नॉट सेइंग एनी CMS is good or any other software or platform or Bootstrap or PHP script is good. I am saying that I use WordPress and I want my interns to use WordPress because that is the platform of our choice. So I make it very clear that there is no competition, no comparison with other softwares or platforms which are used to create website, but we basically use WordPress. How many of you know a difference between WordPress.com and WordPress.org? WordPress.com पे तो सर अपनों को एक होस्टिंग मतलब ये डोमेन और होस्टिंग मिलती है. मतलब एक साइट को अपन होस्ट कर सकते हैं इस पे, और जो .org है अपन लोकल सर्वर पे भी रन कर सकते हैं सर इसको. किसी को या ठीक है थोड़ा बहुत, और किसी को डिफरेंस पता है? Anybody knows the difference between WordPress.org and WordPress.com? Veronica, you have any idea? What is the difference between? No, sir. No, sir. Okay, who else have created website? Menaka, you have any idea? What is the difference between WordPress.org and WordPress.com? No, sir. Okay. So, Dhiren Madhukar, do you have any idea? Yes sir. What is the difference between WordPress.org and WordPress.com? सर .com में मतलब अपन सर .com में सर मतलब .com में सर अपन को ना वेबसाइट रेडीमेड मिलती है, लेकिन ORG में अपन अपनी वेबसाइट को प्लगइन्स वगैरह से डिज़ाइन कर सकते हैं. सर .com में मतलब हर कोई डिज़ाइन कर लेता है .com में, और ORG में सर ऐसे ही मतलब ऐसे ही होता है. अच्छा, मैं इसमें बहुत एक्सप्लेन में डिटेल में जाऊंगा बिकॉज दीज आर वेरी 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 crucial thing you have to understand that. WordPress.com and WordPress.org are both platforms maintained by Automatic, the company behind WordPress. WordPress.com is basically a blogging site where you can create a website for free. When you create a website for free, you can create it online. They give you hosting, they give you a subdomain name, and they let you create a website. Like if you go there and type my name, I am blogging on there, so Madhukar Chopra. If you search for me, so first तो आपको मेरी वेबसाइट मिलेगी, और बाद में अगर ब्लॉग आप खोजेंगे तो उसके नीचे आपको मेरा ब्लॉग भी मिल जाएगा. You can see madhukarchopra.wordpress.com. Is it visible?
इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये मेरा ब्लॉग है. My details will be there, my book will details will be there. You want to read my blogs and all will be there. So here blogs are being created on WordPress website. A website is created. दोनों प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस के हैं, दोनों में इक्वल फंक्शनलिटी है. बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस wordpress.com, what you get is a free subdomain and you can create and host it at that place. You do not have to buy any hosting, you do not have to buy any domain name. Clear? Is it clear? Anybody have any problem in understanding that? Yes, sir, it's clear. Tomorrow if I want कि नहीं मेरे को अपना डोमेन करना है, तो I can make it madhukarchopra.com, .in, whatever, and I can also host it in wordpress.com, but I have to pay money to them. उस टाइम क्या होता है wordpress.com पे, you have to pay money monthly जो भी है, and you can host it in WordPress. तो WordPress is a full platform which is a paid platform by automatic, जिससे वो लोग कमाई करते हैं. wordpress.org, I'll just show you यहाँ पे. wordpress.com. This is a popular website builder. It is totally free. You can create a whatever your name is .com, if it is available, or something other name is available, you can create a full website free here. But if you want to go for special, then there is plan and pricing also, and here there are different plans for build monthly. Whereas wordpress.org में जब आप काम करेंगे तो ये they do not provide any hosting. That is a free open source platform from where you can download WordPress, download plugins, download themes, and work as you want. You can easily say download the WordPress. Current WordPress version is 5.7.1. But for this you need to buy hosting, you need to buy the domain name. They do not give domain name and hosting. So once you want to use wordpress.org, then you have to have a hosting and a domain name to use. लेकिन जब wordpress.com पे करते हैं तो you can start with free, then if you want to change you can go for the personal, you can go for premium, and there are different charges, but the WordPress version which you get are same. Is it clear? Yes, sir. अगर क्लियर है तो मेरे को आप समझाइए व्हाट डिफरेंस क्या है. यस आदिति, you want to say something? Okay, anybody wants to say anything? Clear, sir. Yeah. So basically मैं समझना चाहता हूँ, I want to understand from you Venkatesh, what is the difference between wordpress.com and wordpress.org? Are you there, Venkatesh? And if you are means you don't have a mic, you can type it here. Anyway, if no reply, Sonobar, Shamim, can you tell the difference between wordpress.org and wordpress.com, which I just explained? I'm asking you again and again because I want to understand that you are understanding. It is no point of me speaking it. आपको समझ में नहीं आया. Sonobar, Shamim, are you there? Yes, sir. Actually, with WordPress.org, we can host our own website the way we want it. But with the WordPress.com, we have to pay for it, and then we have to pay for it, and then WordPress will take. WordPress.com की website कहाँ पे? Where will you host WordPress.org website? On WordPress or somewhere else? For WordPress.org, we can. So I guess in the WordPress only. No. And for when WordPress.com is there, you can host it only on the WordPress only. But when you are using WordPress.org,
But when you're using WordPress or you download WordPress and you can host anywhere. And why am I explaining this? Because we'll be using WordPress.org. हम लोग जो वेबसाइट यूज करेंगे वो WordPress.org से करेंगे. Clear? So I told you about two types, WordPress.org and WordPress.com. So when we are talking about the .com website, in that we have to host on the WordPress only, and we have to choose from the plans. But when we are using WordPress.org, we can host it anywhere. डोमेन नेम तो दोनों में हमको फिर भी लेना पड़ेगा. डू यू नो एनी ऑफ द होस्टिंग प्रोवाइडर्स? आप में से किसी को कोई होस्टिंग प्रोवाइडर का आइडिया है? टेल मी फ्यू नेम्स. यस यस सचिन. सर. यस सर, फ्री सॉफ्टवेयर GoDaddy सर. GoDaddy है, और GoDaddy, ब्लू SiteGround, होस्ट है सर. Bluehost, Hostinger. ब्लू होस्ट. Hostinger, SiteGround. there are hundreds of. So जब आप WordPress.com से ले रहे हैं तो आप इसमें से किस में होस्ट कर सकेंगे वेरोनिका? If you are paying a WordPress.com को प्लान दे रहे हैं, say I am going for this On WordPress WordPress.com itself. WordPress.com itself. and can I host it at Bluehost? Yes. I think WordPress.com itself provides hosting when you Yeah. subscribe to WordPress. So when you are paying WordPress.com, you have to host it only on WordPress.com, WordPress.com. because that is a hosting plus what do you say, service. But when you are going for org, so we will be hosting on different platforms and we won't be using WordPress.com. दूसरा, when you are using free WordPress.com hosting, which is free, then what is the disadvantage? Can anybody tell me? Anybody has used it? किसी को पता है फ्री होस्टिंग में क्या प्रॉब्लम आती है? यस सर. क्या? सर एक्सेसिबल कभी नहीं मांगता है सर. मतलब अगर कोई अपन साइट ओपन करते हैं तो सर वहाँ पे एरर आ जाता है 404 एरर का. नहीं, ऐसी बात नहीं है सर. माई साइट इज रनिंग फॉर लास्ट से 3 to 4 years. 2019 Yes, की sir, पोस्ट है, ये अभी भी चल रही है. क्रिएट करी है सर, उसमें एरर आ गए थे फ्री होस्टिंग फ्री डोमेन में. आपने फ्री होस्टिंग वर्डप्रेस पे बनाई थी, WordPress.com पे? या WordPress.org सर, वहीं पे मतलब WordPress.org आपको होस्टिंग नहीं देती. WordPress.org होस्टिंग नहीं देता है. आपने किसी और जगह किया हो. किसी साइट से डोमेन और ये हाँ तो होस्टिंग खरीद के. if you are doing that on any site, then you are not using WordPress.com. WordPress.com is a very good site and it will give you free hosting. लेकिन जो प्रॉब्लम क्या होती है, they will not let you use any plugins without paying up. तो आपको जो मिनिमम मिलता है वही आप कर सकते हैं. So if you want to do anything else except what they are giving, then you have to go for a paid plan. Clear? Any confusion from anybody? Sir, can you please pardon the net? There was a network issue, sir. Okay, in that case, I'll tell you again. Whenever you go for free plan of WordPress.com, they will not let you install any plugins there. They will not let you install any themes other than provided by them. And if you want to do that, you have to purchase a subscription plan. So you cannot install trackers, you cannot do any other things. So you have to have a paid plan on WordPress.com to do that. Right? Is it clear? Yes, sir, got it. Yes, sir, got it. Thank you, sir. So right now I've told you the difference and which WordPress I'll be using. Can you tell me that? Vishal Namdev, can you tell me which platform we'll be using? Vishal Namdev, आप हैं यहाँ पे? WordPress.org. और why we are using that? क्यों? सर because हम कहीं पे अदर प्लेटफॉर्म से भी प्रोवाइड कर सकते हैं. Yeah, we can host it in multiple places. We are not tied up with that. I can buy on SiteGround, I can buy on Google, I can buy on GoDaddy. Google भी hosting provide करता है. I can buy from anywhere. It means hosting from anywhere and use it. Yes, sir. और WordPress.org से जब डाउनलोड करते हैं WordPress को, उसका क्या चार्ज लगता है? What is the payment we have to make? No idea, sir. No idea, Vishal. Okay. Pankaj, how much we have to pay when you download WordPress from org say WordPress? Pankaj Yadav? It's free. It's free. It is open source and free. So normal WhatsApp
WordPress in itself doesn't cost you anything. मेन का when I download from WordPress से free, उसके बाद मेरे को क्या चीज का पेमेंट करना पड़ता है? For what I have to make payments? मेन का, are you there? For plugins you Yeah, have plugins to तो है, लेकिन सबसे पहले क्या डोमेन और होस्टिंग मुझे मिलती है? yes wordpress.com में और मिलती है फ्री में, अच्छा org में WordPress नहीं मिलती, अच्छा org में नहीं हाँ, मिलती, और जब कॉम में मिलती है फ्री में, उसमें प्लगइन लगा सकते हैं दूसरे? no you have to pay for it. You have to pay. So WordPress.com में जाएंगे तो प्लगइन लगाने का पेमेंट करना पड़ेगा, और में आपको फ्री मिलती है, लेकिन आपको डोमेन और होस्टिंग लेनी पड़ती है, राइट? आई टेल व्हेन if we go in later stages, I'll tell you how we can get the domains, means hosting and all for free and work for that. तो अभी तक मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर पाया, आपको समझ में आया? I'm moving forward. अगर प्रॉब्लम हो, I'll again go back. I'm trying to go slow. ये वर्डप्रेस की डैशबोर्ड है, ये आपको मैं आज दिखाऊंगा और थोड़ा बहुत समझाऊंगा। इसके अंदर प्लगइन्स सब कुछ लगेंगे। ये जो राइट साइड में है, यहाँ पे पूरे मेन्यूज होते हैं, इसको क्लिक करके अपने यूज कर सकते हैं। मैं आपको आज लाइव दिखाऊंगा दिस। आई क्रिएट वर्डप्रेस डैशबोर्ड एंड देन आई शो। तो अभी मैं आपसे इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, लेकिन यहाँ पे पोस्ट, पेजेस, प्रॉपर्टीज, मीडिया डिटेल्स सब कुछ आता है, और ये हर एक में सेम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा अलग होता रहता है। इसमें कई पोर्शन होते हैं। दिस पोर्शन इज बेसिकली जो लॉगिन किया होता है, लाइक आई एम मधुकर चोपड़ा इज लॉग्ड इन, सो मधुकर चोपड़ा इज हियर। कैन यू सी दैट? वेबसाइट का नाम यहाँ पे आता है, ये डैशबोर्ड है। यहाँ पे अलग अलग बोर्ड्स रहते हैं जिससे अपने अलग अलग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपनी इसके बारे में और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके उसके बाद वर्डप्रेस रिपोजिटरी या वर्डप्रेस org में बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो फ्री मिलते हैं। उसमें बहुत सारे फ्री प्लगइन्स यूज करेंगे। जब मेरे साथ काम करेंगे, बेसिकली व्हेन यू विल बी वर्किंग फॉर मी, दैट टाइम आई यूजुअली यूज पेड प्लगइन्स, क्योंकि पेड प्लगइन्स के कुछ अपने अच्छी चीजें होती है। सो वी आर यूजिंग पेड प्लगइन्स, बट राइट नाउ इन डेमो मैं स्टार्टिंग आपको फ्री प्लगइन से कराऊंगा, बाद में पेड प्लगइन्स में लेके जाऊंगा। लेकिन आज के दिन मैं फ्री प्लगइन्स पे ही काम करूंगा, एंड आई वोंट गो फॉर एनी पेड प्लगइन्स टुडे। नेक्स्ट डे आई विल बी गोइंग फॉर पेड प्लगइन्स। सो बेसिकली दिस इज वर्डप्रेस का प्लगइन्स है। एलिमेंटर मैं यूज करता हूँ। दिस एलिमेंटर इज अ फ्री प्लगइन। I'll talk in detail with Elementor because we are working in mostly Elementor. इसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। So anybody have any questions? I'll explain to them. उसके बाद themes के बारे में बात करेंगे। I'll explain what is a theme, what is a plugin, what is the difference. I'll put different themes and I'll show you how the different themes look and plugins. Theme basically पूरा structure होता है, and I'll show you that also. So anybody has a knowledge of themes and plugins? जिसको knowledge है वो खाली yes type करे, जिसको नहीं वो छोड़ दे। Whoever have knowledge about WordPress themes and plugins, whoever knowledge just type yes. Okay, Sachin, you have knowledge about Raju Dubey, ठीक है। 2% have knowledge about themes and plugins, no problem. The plugin which I will be using is Elementor, and I will be using today Elementor free version. But when you will be doing in my internship, then you will be using the pro version. हम लोग फ्री वर्जन नहीं यूज करेंगे, हम लोग पेड वाला यूज करेंगे। लेकिन आज के दिन हम फ्री वर्जन यूज करेंगे। मैं आपको खाली फ्री की पावर दिखाता हूँ। जब फ्री में इतना अच्छा हो सकता है तो पेड में तो और अच्छा होगा। I'll show you the power of the free today one. ये एलिमेंटर पेज बिल्डर का इंटरफेस है। राइट नाउ मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, बट वंस यू हैव टू सी इट लाइव इन एक्शन, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द डिटेल। मेरा इनिशियल प्रेजेंटेशन इज ओवर। मेरा इनिशियल प्रेजेंटेशन था जो पूरा थ्योरी था, मैं इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको पूरे वेबसाइट बना के दिखाऊंगा स्क्रैच से, राइट? और कितने ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा। अभी तक आई वांट अ डिस्कशन, सो देयर आर
few people here. Tell me what have you understand up till now. So उसके बाद मैं आपको एकदम पूरी लाइव वेबसाइट दिखाऊंगा बना के कैसे बनती है, क्या बनती है, और पूरा इतना इजी आपको लगेगा. नहीं समझ में आएगा तो सब आप में से हर एक जन बना पाएगा. I'll make beautiful websites. बट पहले आपसे समझना चाहता हूँ, अप टिल नाउ आपको सब समझ में आ गया? Yes, sir. एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? आप में से एक्स्ट्रा थीम को यूज किया हुआ है? एक्स्ट्रा यस थीम, सर. एक्स्ट्रा थीम में आपने यूज किया है? और किसी यस को सर. नॉलेज है? यस सर. धीरेन एंड सचिन, यू हैव यूज एक्स्ट्रा थीम, तो आपको मोटा मोटी एक्स्ट्रा थीम का नॉलेज है. सो मैं आपको एक एक्स्ट्रा थीम है वो यूज करूंगा, उससे वेबसाइट बनाऊंगा. सबसे पहले समझिए, हम लोग यूजुअली एक्स्ट्रा थीम नहीं यूज करते, लेकिन इसके लिए आज पहले दिन है, तो इसीलिए मैं वो आपको दिखाऊंगा कि वेबसाइट. आप में से कितनों को लगता है हाउ मच टाइम शुड इट टेक टू क्रिएट अ वेबसाइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, Veronica? हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू क्रिएट अ वेबसाइट? हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर यू टू क्रिएट अ वेबसाइट? एवरेज टाइम? I think around half an hour to 45 minutes. In half an hour to 45 minutes you can create a full website? No, not a full website, but I'm not sure. Actually, Create a the single page application. Huh? Yeah, tell me. Yeah, Venkatesh, yeah, please speak again. I was not able to hear you clearly. It will create a single page application only, sir. And can you beautify it also? Sorry? Can you beautify it also? कौन से प्लेटफॉर्म यूज करेंगे? विच प्लेटफॉर्म यू यूज? If you're creating application, which platform you will be you using? आप किस में बनाएंगे? I'm not talking about WordPress, because if you're creating an application, I don't suppose a WordPress में application बनेगा. Applications के लिए आपको दूसरे सॉफ्टवेयर लगेंगे. तो which Android Studio. हाँ? Okay. So anyway, मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ. मैं एक्स्ट्रा आपको बोला था, there is एक्स्ट्रा थीम, ASTRA theme. After 10 to 15 minutes I'll start. And I'll show you how to create these. Yeah, can you see the templates? Oh, sorry. I'm not presenting. One second, I'm presenting this. One second. Is it visible? Yes sir. Yes. These are websites which are totally created, and these are totally free of cost. I'm just showing you the website, how it looks. This is the page. This is the design. This was home page. We'll go to the all courses page, and you can see all courses page here. Can you see it visible? Yes sir. This is about page. This is contact page. Actually, if you are building totally from the scratch, when we'll be building, this will take a lot of time, maybe 2 or 3 days. But when we have templates, ready-made templates, which we import it, it is very, very, very fast to create this. So initial stages, I won't show you how to create it totally from the scratch. Starting में अपने template लेंगे और उसको लगाएंगे and use करेंगे. So this was one of the site. Now, second site is this. Say I go for this plant store, and whenever you see this, this is a total e-commerce website. In this, you can click on this. The product will be there. You can buy the product, add to cart, and it'll come to your cart.
You can view your cart, proceed to checkout, and do. All these are totally free of cost, created by you, in which you can edit and use it as per you wish. For that, what we need are free themes and softwares. Now I come to which platform you'll be using, WordPress.com or .org? आप कोई बता सकते और तो मैं WordPress.org में आता हूँ। यहाँ से when you want to download it, you can click on Get WordPress. You can download it, click here, and it is totally free of cost, and it will be downloaded here in few seconds. Now I can upload it to my server and do it, but most of the servers like Bluehost, SiteGround, GoDaddy, they have their own built-in settings from which you can install WordPress. You do not have to go through the full loop. So I don't go for the full loop today. I'll show you easier method. लेटेस्ट स्टेज में अपने ये पूरा करेंगे जब मैं आपको इस डाउनलोड को अपलोड करके फिर सेटअप करके दिखाऊंगा, बट आई सपोज टुडे इट विल बी टू कंफ्यूजिंग फॉर द फर्स्ट डे, सो आई वोंट गो देयर. अब इसमें जैसे थीम्स हैं, तो देयर आर मेनी थीम्स हियर, सो आई शो यू व्हाट थीम्स आर देयर. हाउ मेनी थीम्स कैन यू सी हियर? कितनी थीम्स है यहाँ पे? 3948. इसका मतलब हो गया 4000 के आसपास की फ्री थीम्स यहाँ पे है. और जो मैं यूज करूंगा दैट इज जो तीसरे नंबर में एस्ट्रा लिखी हुई है, ये थीम है. ये भी टोटली फ्री है डाउनलोड करने के लिए. इसका प्रो वर्जन भी है, लेकिन ये भी फ्री में डाउनलोड हो सकती है. मैं यूजुअली हम लोग जो यूज करेंगे वो हेलो यूज करते हैं, एस्ट्रा यूज करते हैं. दीज आर द थीम्स. और वर्डप्रेस जब व्हेन यू डाउनलोड वर्डप्रेस, दीज 2-3 themes are totally free, which is installed with 2021, 2020 and 2019. These 3 themes automatically comes there. ठीक है. Plugins देखना तो when you click on plugins, they'll tell me plugins. There are thousands of plugins out here. And say, for example, if I type, मैं जो plugin use करूँगा that is Elementor. Elementor को सर्च करने से there will be thousands of Elementor plugins here. There are 49 pages, so this. So there are thousands of plugins here and thousands of themes here, which are totally free of cost. WordPress.org पे कोई भी चीज पेड नहीं हो सकती. There can be a demo version out there, but it will be a full working demo, and you will not have to pay for it any other day. Clear? Yes, sir. Clear? अभी टाइमिंग क्या हो रही है? What is the timing here? Sir, 17:54. 5:54. आपको मेरी वॉच दिखाई दे रही है यहाँ पे? कैन यू सी द वॉच? Yes, sir. Yes, sir. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वर्डप्रेस की होस्टिंग को चालू करूंगा. मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ. सो फॉर यू आई विल बी क्रिएटिंग अ डेमो वेबसाइट टोटली हियर राइट नाउ. स्क्रैच से एंडिंग तक. पोस्ट में जा रहा हूँ. इसमें कैसे बनते हैं वो भी नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा, हाउ टू यूज इट. अच्छा, अभी मैं आपको these things I'm going very fast. When I'll be going to detail or when it will be internship, I'll go through each and every portion here. लेकिन मैं आपको WordPress से start करना चाहता हूँ. I do not want to start you with the hosting control panel and explain you everything. ये Vista panel करके है. This is something like control panel. Whenever you go for hosting, the hosting person will give you this. आप देख पा रहे हैं इसको? Are you able to see this? Yes, sir. Yes, sir. 5:55 हुआ है. 1 मिनट हुआ अभी तक. अच्छा, अब मैं आपसे कोई नाम लेना चाहूंगा. शॉर्ट नेम दीजिए जो अच्छा नाम हो. सोनोवार शमीम, आर यू देयर? Yes, sir. टेल मी अ वेरी शॉर्ट नेम जो मैं यूज कर सकता हूँ अभी की डोमेन होस्टिंग के लिए. Meow.com. मियाओ. ओके. सो meow.com करके अपने होस्टिंग करेंगे भी meow.com.
meow.com तो देखो .com तो हो गया, यू हैव टू पे फॉर इट. मैं एक सब डोमेन लेता हूँ. सो फर्स्ट थिंग आई विल बी क्रिएटिंग इज अ सब डोमेन. सो आई विल बी यूजिंग सब डोमेन्स. या ये होस्टिंग का कंट्रोल बन रहा है और मैं meow.com करके बनाऊंगा. meow स्पेलिंग इज राइट. Yes, sir. meow is best, meow is great, क्या लें? meow is best.net ले लें. यस सर, कोई भी ले लो सर. I don't know who is giving me messages. One second. Anybody is not able to log in or something like that? One second. Yeah. So I'm creating this meow. Confirm करें, लॉक करें इसको. यस सर कर दो. ओके. सो meow.isbest.net बन गई. नाउ इसको देखने से वेबसाइट कैसी दिखती है मैं आपको दिखाता हूँ राइट नाउ. प्लेन वेबसाइट बनी है डायरेक्टरी लिस्टिंग के साथ. 2 मिनट हो गए क्योंकि आई एम टॉकिंग टू यू एंड डूइंग मल्टीपल थिंग्स, सो इट इज टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम. अब मैंने कहा आपको कौन सी थीम में यूज करूंगा. एस्ट्रा. उसके फ्री टेम्पलेट्स यूज करेंगे. या एस्ट्रा के फ्री टेम्पलेट्स, और मैं सिर्फ फ्री टेम्पलेट्स में आपको दिखाऊंगा. आई विल गो फॉर द फ्री वर्जन. स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है. अब म्याओ के अंदर कौन सी होनी चाहिए मैं देखता हूँ. एनीथिंग एनिमल रिलेटेड इज फ्री. या ये पेट वाला है, इसमें म्याओ भी है तो, या डॉग है क्या. ठीक है, अपने इसको बाद में कैट्स बना देंगे. तो ये आप देख पा रहे हैं. आर यू एबल टू सी दिस साइट. यस सर, यस सर. I'll take this dog and later on we'll turn it to cat's site. Woof and purrs. Okay, can you see the site? ये front page है. Who we are. इसमें 4 पेजेस है. Services, and last page is get in touch. So I'll be using this site. I'll create and then I'll convert from dogs to cat. ये आज मैं आपको करके दिखाऊंगा. So I am going again here and see. Which platform are you using? किसके अंदर बनाएंगे? Tell me, Veronica, are you there? Veronica, are you there? Veronica D'Souza? WordPress.org. WordPress.org से सॉफ्टवेयर लेंगे, WordPress पे बनाएंगे. Now we will be using WordPress. So इसके अंदर मैं आपको अपलोड करके नहीं दिखाऊंगा. That can be done. I'll show you next day. But for today, इसके अंदर मैंने कहा बहुत सारे apps होते हैं. तो I'll be using this software app installer. I'll click on that. And it will be loading the strips. And इसमें से कौन सा आपने को चूज करना है? Somebody tell me. WordPress. WordPress, yeah, very good. उस पे क्लिक करके कहाँ पे करना? इंस्टॉल पे क्लिक करना अपने को. यस सर, यस सर. WordPress का वर्जन है दिस. मेरी वेबसाइट का नाम है दिस. मैं आई जस्ट वांट टू टेक कॉपी इट, हमको ध्यान में रहे. सो द नेम इज meow meow.is best. Sorry. best.net. So this I'll be using. अब साइट नेम क्या रखे हैं? What should be the site name, Sonoma? What should be the site name? Meow. Our, yeah, cat
page. What's your description? Admin username. अच्छा, कोई एक यूजर नेम मुझे बताया जाए. Aditi, tell me your username. Aditi. Sir, maybe meow at meow 123. Any? Okay, username meow. Same. So username is meow. पासवर्ड कर लेते हैं meow 123. यूजरनेम अपने meow बना देते हैं. That is username. पासवर्ड हो जाता है. ये मैं इसलिए रखा हूं कि बाद में मेरे को याद रहे. I may not write it, but if I do not write it, I won't remember it later. फिर एक्सेस करने में प्रॉब्लम होगा. सब जब पासवर्ड होगा तो ये बोलेगा बैड है, तो मुझे थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा. आई कैन डू इट meow, 123. चलो गुड हो जाएगा. So I'm using meow, I can use the bad password also, but why use the bad password? ईमेल मेरी आईडी जो है मुझे देनी हो दे दी. यहाँ पे लैंग्वेज इज इंग्लिश, लिमिटेड, ये सब मुझे नहीं चाहिए. यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस में जाके ये अपने आप डेटाबेस बना देता है, बट ईज के लिए मैं MEOW म्याओ करके एक डेटाबेस बना रहा हूँ जो मुझे पता रहे कि क्या डेटाबेस सेम नाम है, और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ. अब इंस्टॉल का चालू करते हैं. मैं हम लोग इंस्टॉल चालू करें. यस सर. ठीक है, आई जस्ट स्टार्ट द इंस्टॉल में मैं क्लिक करूंगा और ये चालू हो जाएगा. देखिए वर्डप्रेस वेबसाइट बनने में स्टार्ट हो गई है. यहां से दिखा रहा है इट इज क्रिएटिंग एंड इट इज कंप्लीट. क्लिक करके देखते हैं कैसा दिख रहा है. ये वेबसाइट है, पहले देखो ऐसे दिख रही थी. सबको दिखाई दे रही, पहले कैसे दिख रही थी? एवरीबडी इज एबल टू सी, यस और नो? यस सर. Yes, yes. अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी कैसी हो गई है. वहां से चेंज होके यहाँ पे आ गया. कैट्स पेज. ये अब सबसे पहले इसमें कुछ प्लगइन्स यूज करेंगे. मैं कौन सा प्लगइन हमेशा यूज करता हूँ? एलिमेंटर. तो यहाँ पे दो प्लगइन्स ऑटोमेटिकली लोडेड है, और मैं अपना जो प्लगइन है, पहले इन दोनों को मुझे नहीं चाहिए तो आई जस्ट डिलीट इट. इनको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आई डोंट वांट दीज प्लगइन्स एंड आई वांट टू ऐड न्यू प्लगइन व्हिच इज एलिमेंटर. तो मैं जैसे ऐड न्यू करूंगा, वो वर्डप्रेस का जो पेज था वहां वाला वो खुल के यहाँ पे आ जाएगा. एंड आई टाइप ये एलिमेंटर और एंटर, और इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ. अब इसमें 1-2 मिनट लगेगा. आई सपोज सो वी स्टार्टेड एट 5:56 or 5:57. अभी 7-8 मिनट हो गए. It will take 1 or 2 minutes to install Elementor. This is a free page builder, and I'll tell you what is a page builder next session. What is the detail? उसके बाद अपने e-commerce store भी बनाएंगे, products भी डालेंगे. I'll show you those things also. अभी तक आपको समझ में आ रहा है? किसी को कुछ प्रॉब्लम है समझने में? Everybody is clear about it? यस सर. या सो बेसिकली मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दी. वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में ज़्यादा देर नहीं लगी. आई सपोज से 2-4-5 मिनट लगे. उसके बाद जो एलिमेंटर प्लगइन है ये भी इंस्टॉल हो गया. उसके बाद मुझे 1-2 और प्लगइन्स है, जैसे हेडर एंड फूटर है, ये भी इंस्टॉल करूँगा. मैं बाद में बताऊँगा किस लिए होता है. और मैं एक और स्टार्टर साइट्स करके प्लगइन है वो भी इंस्टॉल करूँगा. एक करके स्टार्टर साइट करके है एस्ट्रा का प्लगइन, ASTRA, एस्ट्रा का एक प्लगइन स्टार्टर साइट्स, उसको अपने इंस्टॉल.
वो जो साइट्स में आपको दिखा रहा था वो स्टार्टर साइट्स का पार्ट था. Okay. So, Karan Sintal, are you there? Yes, sir. How many plugins have I installed? Elementor, header and footer, and star, and Astra. Three. Starter template, Astra starter templates. 3 Yeah. प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया. ये प्लगइन इंस्टॉल करने से एक्टिवेट नहीं होते, तो इनको प्लगइन्स, सॉरी, देयर इज सम प्रॉब्लम देयर. 1 second. यहाँ पे कुछ एरर हो गया, तो वापस जाते हैं. या वापस जाते, इस प्लगइन्स में अपने वापस जाते हैं. तो कितने प्लगइन्स इंस्टॉल किए अपने? 3 प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे. You can see the 3 plugins. मेरी आवाज आ रही है? इनको मैं सबको लिए एक्टिवेट कर देता हूँ कि ये सब चालू हो जाए. कुछ प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे. either means यूजर ने पासवर्ड, मैं एक बार निकल के वापस इसको लॉगिन कर लेता हूँ. अगेन आई गो फ्रॉम दैट, ये प्रॉब्लम नहीं है. आई एम लॉगिन अगेन. Go to plugins, install plugins, click activate. तीनों प्लगइन्स एक्टिवेट हो गए. थीम अपने कौन सी यूज करेंगे? एनीबडी कैन टेल मी विच थीम्स आई विल गोइंग टू यूज? मेनका, कैन यू टेल मी विच थीम्स आई विल यूज? मेनका? Astra. Yeah, Vishal, very good. Menka, can you tell me which themes we will be using? Menka, Panni? Yes, sir. Which Astra theme for now. Okay. For now, Astra theme. So, appearance में जाएंगे, थीम चूज करेंगे. आपका बाबा दीप जो कर रहे हैं, कैन यू टेल मी, बाबा दीप सिंह जी, whoever is with that name, कौन सी थीम्स इंस्टॉल्ड है अभी राइट नाउ वर्डप्रेस के अंदर? कौन सी इंस्टॉल्ड है? विच आर द थीम्स विच आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड? आपको सुनाई दे रहा है? 2021, 2019 and 2020. And I'll be adding a new theme which is called Astra. And I'll search for Astra. और इस थीम को मैं इंस्टॉल करूंगा. इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको इंस्टॉल करने में. ऐसे अपने मेरे सबसे 555 के आसपास चालू किए थे, अभी 610 हुआ. मतलब ये जस्ट यूज 15 मिनट्स, जिसके अंदर अपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिए. वी हैव इंस्टॉल 3 प्लगइन्स एंड राइट नाउ वी आर इंस्टॉलिंग द थीम which is installed. अपनी वेबसाइट कैसी दिख रही है? This is how our website is looking. और इस थीम को मैं एक्टिवेट करता हूं. सो एक्स्ट्रा के बाद मेरे भी अपनी चेंज हो गया, थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है चेंजेस, राइट? अच्छा राजू दुबे, आर यू देयर? यस सर, आई एम हियर. ओके, सो आई वांट टू नो आप कौन सा अपने टेम्पलेट लगाएंगे इसके अंदर.
स्टार्टर टेम्पलेट में जाके कौन सा टेम्पलेट लगाएंगे अपने, इसका नाम क्या है, पेट सर्विसेज। क्या लगाएंगे, पेट पेट सर्विसेज। सर्विसेज। तो ये अभी देख लीजिए ऐसा दिख रहा है, आई एम गोइंग एट म्याऊ इज बेस्ट डॉट नेट, और मुझे जो दिखाई दे रहा है इस तरह से दिख रहा है। आई एम गोइंग हियर, एक्स्ट्रा में थीम्स के डिटेल में क्लिक करता हूँ, और नीचे आप देख पाएंगे बहुत कुछ है, कस्टमाइज, विजिट, स्टार्टर टेम्पलेट्स, हेड एंड फूटर ब्लॉक्स। तो कैन समबडी टेल मी हियर से वेरोनिका, वेयर शुड वी गो नाउ, व्हाट, अब क्या करने का, व्हाट शुड वी डू नाउ? In this, where should I go? I go to widgets, menu, starter templates, header, footer, or extra option. What should I do now? Veronica, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Yeah. So what is our next step? I think starter templates. Very good, because we installed starter templates. Or which starter templates we want to use? Now plugin you choose करने का, which plugin I am using? I am using Block Editor, Elementor, View Builder. Elementor. Elementor. Very good. Elementor. और यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स आ गए। कौन सा स्टार्टर टेम्पलेट्स आई एम सर्चिंग अबाउट? Pet care. Pet services, I suppose so. Pet services. Pet services. Sorry. This one is the site here, and I tell it to import the complete site. It'll ask what do I know. I can say I'm beginner, building website for myself, my company. Advanced option, import the customized, second import templates. I say okay, and I say next. First name is digital website, submit and start. Now this will import this template. What is the time now? Can anybody tell me? 6:13. 6:13. अब कम से कम 2-5 मिनट ये अब लगेगा. It will take 2 to 5 minutes to update this template. There is a cancel. Let's see. Visit site. There was a issue or something like that. Let's see. I have to do it again. Next. At times these issue में हो आपको. सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है सर. तो मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है. यस सर. तो मैं भी वापस सबको विजिबल करता हूँ. प्रेजेंटेशन वापस लाता हूँ. मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं थी क्या? हो सकता है मेरा तो हम लोग को था. सर विजिबल था सर, और लोगों को विजिबल था, उनको नहीं होगा. हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू होगा. अब मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर. यस सर. आप अपने साइट देखते हैं कैसी बनी. दो मिनट लगेगा इसको लोड करने में. I suppose today there is some server issue, something like that. It is website देख पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir.
दिस इज वेबसाइट आई एम क्रिएटेड. आपको 2 या 4 मिनट देता हूँ, उसके बाद वापस मैं आऊँगा. I suppose you are either sitting on your phone, you are using mobile or something like that. I'm sending you the link. आप अपने साइड में ये साइट खोल के देखिए. Click on this site. 2 या 3 मिनट बाद मैं वापस आ जाऊंगा. I'll tell, but 2 या 3 मिनट इस साइट को खोल के देखिए. This site has been created within 20 minutes. 16 हुआ है. And this site has been created. आप लोग खोल के देखिए कैसा लग रहा है. मोबाइल पे हो तो मोबाइल पे खोल, you can see in the mobile. सर एरर बता रहा है. एरर बता रहा है. मेरे यहाँ तो आराम से खुल रहा है. और किसको एरर बता रहा है? सर मेरा खुल गया, माइन ओपन. कोई और खोल सर के मेरा भी खुल गया. सर सर अच्छी लग रही है. हमारे भी कोई बहुत अच्छी लग रही है सर. एरर किसके दिखा रहा है? सचिन किसके एरर सर दिखा रहा है? अब ओपन हो गया सर. हो सकता है एक्चुअल में डेटाबेस एक साथ अभी अभी हाथ तो बनाई ना, तो कुछ टाइम लगता है कि पूरा ठीक से एकदम पूरा नॉर्मल आने में. सो आई हैव शोन यू टू क्रिएट अ वेबसाइट. वर्डप्रेस के ऊपर बनाना कितना फास्ट है. बेसिकली आपने बनाया नहीं है, कोई रेडीमेड साइट है, उसको आपने यूज किए हैं. सो इट इज नॉट कि बहुत ही मुश्किल है बनाना. अभी तक मैंने जो भी यूज किया टोटल फ्री यूज किया है, कोई भी पेड नहीं है. यहाँ तक कि मेरी जो होस्टिंग स्पेस है वो भी फ्री है. मैं अपनी पेड होस्टिंग स्पेस नहीं यूज कर रहा है इसमें. बिकॉज आई वांटेड टू, डोमेन जो है वो सब डोमेन है और वो भी फ्री है. बिकॉज meow.is.com के लिए मैंने 1 पैसे भी नहीं दिए. होस्टिंग में मैं जो यूज कर रहा हूँ वो फ्री वाली होस्टिंग, उसके लिए भी मैंने 1 पैसे भी नहीं दिए. हम लोग जब काम करेंगे तो कोई फ्री होस्टिंग नहीं यूज करेंगे, बट लेकिन राइट नाउ आई एम यूजिंग ऑल दोस थिंग्स. आप लोग को समझ में आ रहा है इजी है या हार्ड लगा? इजी सर. और इसके अंदर 4 पेज है. इसमें 4 पेज है जैसे मैंने बनाया है. तो जब तक आपको नहीं पता तब तक, अब मैंने कहा था दिस इज अ डॉग वेबसाइट एंड आई वांट टू क्रिएट अ कैट वेबसाइट. अब दैट विल नॉट बी वेरी इजी. तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. आई सपोज पहले दिन ये देखिए, पहले वेबसाइट ऐसी थी. अब मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ. रीलोड करने से पूरा चेंज हो जाएगा. देखिए उसका पूरा ऐसा बन गया. अब इसमें पेजेस में जाते हैं. देखिए बहुत कुछ है, मैं इसमें कल डिटेल में आऊंगा. या सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है. सॉरी स्क्रीन विजिबल. सॉरी स्क्रीन शेयरिंग नहीं चाहती. इट्स ओके सर. 1 मिनट एक्चुअली बात करते करते आई थॉट इट इज. अब मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ. ये जो अपनी कैट की वेबसाइट, डॉग की वेबसाइट है. अब इसको छोटा करके दिखाते हैं अपने. देखिए ये वेबसाइट वैसी थी और जैसे मोबाइल में आएगी ना, मोबाइल में वेबसाइट इस तरह की. ऊपर का मेन्यू आप देख रहे थे, पहले कैसा था? ये मेन्यू था. जैसे ही अपने मोबाइल वेबसाइट कर देंगे, आप अगर मोबाइल में देख रहे हो तो मेन्यू ऐसा बन जाएगा. पूरी रिस्पॉन्सिव है. आप देखेंगे पूरा नॉर्मल. अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ डॉग लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. लेकिन जैसे ही रिस्पॉन्सिव होता है, ये इस तरह से हो गया. एक ही लाइन में था, जबकि ये 2 लाइन. ये एक ही लाइन में था, ये 2 लाइन में आ गया. तो जब आपने बनाते हैं तो अपने पास ऑप्शन रहता है कि पूरा को पूरा वो हिसाब से सेट कर देता है. इस पेज को छोटा नहीं करता, क्योंकि अगर इस पेज को छोटा किया जाता तब देखने में इतना अच्छा नहीं लगता. एक मिनट, 1 सेकेंड. ओके, कंट्रोल शिफ्ट. अगर इस पेज को छोटा करते तो कुछ इस तरह का हो जाता, जिसको देखने में बहुत तकलीफ होती है. लेकिन अपने पेज को छोटा नहीं किया, रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि ऊपर नीचे चेंज हो जाता है. अब अपने देखते हैं कितने पेजेस हैं इसमें. पेजेस पे क्लिक करता हूँ, ऑल पेजेस पे क्लिक करता हूँ. जस्ट हैव अ लुक हाउ मेनी पेजेस होते हैं. हाउ मेनी पेजेस आता है? कितने पेजेस है? हाउ मेनी पेजेस आता है? 6 के अंदर 2 पेजेस पहले से बने हुए थे. सो आई डिलीट दीज 2 पेजेस. मूव टू थ्रैश, अप्लाई. यहाँ पे 4 पेज है और एक सबसे पहले. आपकी वॉइस एको कर रही है. हेलो सर, आपकी वॉइस एको कर रही है. मैं शायद वापस- किसी और का माइक भी ऑन हो रखा है. हाँ, किसी का और का ऑन हो रहा है तो मैं ऑफ करके. अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर दीजिए. राइट नाउ सपोज इट इज ओके.
Yes, sir. Yeah. So there are 4 pages now here. इसका फ्रंट पेज या होम पेज कौन सा लिखा होगा? फ्रंट पेज लिखा हुआ कहीं पे? फ्रंट पेज, कैन एवरीबॉडी सी? होम पेज पे है सर। होम पे फ्रंट लिखा हुआ है, दिस इज द फ्रंट पेज। इसको व्यू करते हैं अपने, तो जो अपना मेन पेज है वो दिखाई देगा। ये अपना मेन पेज है। अब अपने सबसे पहले इस पेज को एडिट करते हैं। एडिट करना इतना इजी नहीं होता है जितना रेडीमेड लिया हुआ है, तो अपने एडिट करके देते हैं। एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, क्योंकि अपने एलिमेंटर यूज करेंगे। अब एलिमेंटर लोड हो रहा है धीरे धीरे, इट विल बी लोडिंग द फुल साइट। ये पेज देख पा रहे हैं? इसके बारे में और डिटेल में मैं नेक्स्ट ले जाऊंगा। आज के दिन में पूरा आपको उतना नहीं प्रेशर दूंगा कि आपको समझ में नहीं है। तो सबसे पहले ही अपने को एक डॉग की जो कैट पेज चाहिए, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। इसको सेक्शन बोलते हैं। बड़ा हिस्सा मैं नेक्स्ट डे समझाऊंगा व्हाट इज द सेक्शन एंड ऑल। और इसके अंदर सेक्शन की स्टाइल में जाएंगे, और स्टाइल में डॉग का फोटो दिखाई दे रहा है, इसकी जगह मैं कैट का फोटो डालूंगा। फ्री इमेजेस फ्रॉम पिक्साबे करके एक जगह है, और मुझे कौन से फोटोग्राफ चाहिए? किसके फोटोग्राफ चाहिए? कैट की। चलिए मैं कैट का फोटो चूज करता हूँ जो मुझे पसंद आए। ये तो लायन हो गया। कैट, कैट ही है ये, लायन है। लायन का कैट, चलो इसको भी अच्छा लगा। चलो इसको लिया, सेव एंड इंसर्ट। एक कैट डाले, लायन जैसा लग रहा है। ये देखिए फोटो चेंज हो गया, देख पा रहे हैं? Yes, sir. कैट की बहुत सारी इमेजेस हैं, एंड दिस इज लुकिंग समथिंग डिफरेंट। ये अपना पेज का फोटो चेंज हो गया। यहाँ पे लिखना है, आप में से कोई कैट के बारे में एक सेंटेंस मुझे लिखे। वी, कुछ भी मुझे एक सेंटेंस बताइए कोई। टेल मी समथिंग। दिस इज meows page। Cats। यहाँ पे चूज करते हैं आइकन। ये अपने छोड़ते हैं, फोटो नहीं चाहिए अपने को, चाहिए बेसिकली नंबर प्लस 91। एक फोन नंबर डाल दिया। नीचे का टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे थ्री कैट की दूसरी फोटो चाहिए मुझे, क्योंकि हम वी आर क्रिएटिंग अ कैट्स पेज। फ्री इमेजेस में जाते हैं, चूज कैट। देख पा रहे हैं? अब ये फोटो आ गई। यस सर। अब ये है, सॉरी यहाँ नहीं,
पिक्सा भी सर्च करना पड़ेगा, फ्री ऑनलाइन। आप दूसरी जगह से भी डाउनलोड करके डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब आपको यहाँ से ही लेनी पड़ेगी। इसको मैंने चेंज करके अपडेट कर दिया। अब देखिए इस फर्स्ट पेज कैसा दिखाई दे रहा है, ये पेज दिख रहा है आपको, दिस वॉज द पेज। अब देखिए इट विल बी समथिंग लाइक दिस। चेंज दिखाई दे रहा है? यस सर। इन केस आपके पास मोबाइल है तो अपने घर में मतलब 2 मिनट में देखिए आपके जो मोबाइल है उसमें भी चेंजेस हो गया। इट इज चेंजिंग एवरीवेयर। इट इज नॉट द पेज इज जस्ट चेंजिंग हियर, इट इज चेंजिंग एवरीवेयर। ये वेबसाइट है पूरी, और ये लिंक आप अपने दोस्त को कहीं भी भेजेंगे, दिस विल बी गिवन दैट। डिजाइनिंग चेंजेस में मैं बहुत ज़्यादा भी जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू चेंज द डिजाइंस टू मच टुडे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी तक हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली? कितने जन को अभी तक का प्रोसेस समझ में आया? यस सर। Veronica, what do you think about it? Is it too easy, too hard, medium, or something like that? Easy until now, sir. Easy until. See, it is easy up till now, up till I am doing it. The moment you have to do it, it will be tough, because आपको पहले पता होना चाहिए वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे होती है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, थीम करने के बाद स्टार्टर टेम्पलेट्स कैसे करते हैं, स्टार्टर टेम्पलेट्स में लगाने के बाद एलिमेंटर कैसे चालू करता है, और एलिमेंटर में कहाँ कहाँ फंक्शन चेंज होते हैं। अब इसका नीचे का देख रहे हैं एकदम फ्लैट दिखाई दे रहा है आप लोग को? आर यू एबल टू सी इट? नीचे क्या एकदम स्ट्रेट है ना? यस सर। अब इसको थोड़ी सी डिजाइन देते हैं। मैं इस एलिमेंटर में आता हूँ, इधर आते हैं, और इसको मेरे को थोड़ा सा डिजाइन चाहिए नीचे। आई क्लिक किया, आई गो टू स्टाइल्स, शेप डिवाइडर में मैं जाता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, मैं बॉटम शेप डिवाइडर चाहता हूँ, एंड इट शुड बी समथिंग लाइक जिगजैग, और इसकी मैं विड्थ तो राइट चेंज कर दूँ। Not looking good. Say I want to do clouds, and I want to have to be less. सर फ्लैट ही अच्छा लग रहा था। कुछ करने से कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, बिना कोशिश के तो गुड सर। अब इसको देखते हैं कैसा दिख रहा है। दिस इज गुड वन। तो अपने देखिए ये जो बनाई हुई है, ये डिजाइनर्स की बनाई हुई है, दोज आर एक्सपर्ट्स। जो इसने बनाया है ये बहुत अच्छे बनाए हैं, बिकॉज दे आर गिविंग इट फ्री। लेकिन यूजुअली क्या है, एक्सपर्ट्स है, तो अपने उतने अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन जब अपने बनाएंगे तो वी हैव टू नो कि हाउ टू डू दैट। अब जैसे ये वाली है, इस इमेज को अपने लेते हैं। ये जो इमेज है इसमें अपने थोड़ी स्टाइल देना चाहते हैं। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देते हैं 35। दिखाई दे रहा कुछ? यस सर। हल्की सी शेडो दे देते हैं, और शेडो की कलर दे देते हैं थोड़ी सी रेडिश। कुछ फर्क लगा? यस सर। ये वाली पिक्चर में जाते हैं, सेम चीज जाता है।
CSS फिल्टर लेते हैं थोड़ा सा इसमें, आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। दीज आर गुड पिक्चर्स टेकन फ्रॉम अनप्रेस, लेकिन हो सकता है कि आपके पास पिक्चर्स उतने अच्छे नहीं हो, आपको ब्लू टोन चाहिए जो आपकी वेबसाइट से सूट करता हो, पिक्चर रेड हो, तो अब इस तरह से इसमें डिजाइन कर सकते हैं। तो जो पहले जो था और जो अभी है, आप देख पा रहे हैं कि उसमें फर्क हो गया। अब जैसे रिव्यूअर्स है, ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक तो ओवरले दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिव्यू क्लीन दिखाई देना चाहिए। तो मैं भी जाता हूँ वो ओवरले किस लिए है। बैकग्राउंड ये है और इसका जो ओवरले कलर है ये ब्लैक दिया हुआ है। अगर इसको मैं हटा दूं, ये ऐसा था, अब साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें ओवरले दिया हुआ था, सो इट वाज लुकिंग बेटर। तो अपने से जैसा ओवरले देना चाहते हैं वैसा ओवरले दे सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे फॉन्ट है, ये मुझे ये वाला फॉन्ट नहीं चाहिए, मुझे इस फॉन्ट को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे स्टाइल में जा सकता हूँ, कंटेंट में जा सकता हूँ, टाइपोग्राफी में जा सकता हूँ, और मुझे चाहिए इसकी जगह रोबोटो फॉन्ट्स। नीचे वाला रोबोटो हो गया। टाइटल में जाता हूँ, मुझे ये भी रोबोटो चाहिए। स्टाइल कुछ चेंज हुई। अब मुझे मान लीजिए थोड़ा छोटा चाहिए, आई वॉन्ट टू डिक्रीज द साइज, और थोड़ा मोटा चाहिए, और इसका कलर थोड़ा सा ऑरेंजिश होने से अच्छा लगेगा। ये जो कलर है, और सेम जो डिजाइन है मैं यहां से चूज करूंगा ये कलर को, एंड आई सेट इट एज ग्लोबल। ग्लोबल मतलब मैं कहीं भी लगा सकता हूँ। म्याओ ऑरेंज, और जो फॉन्ट अपने यूज किए थे इसके लिए, इस टाइपोग्राफी को अपने सेव कर सकते हैं ग्लोबल में। म्याओ सब हेड। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको सिखा नहीं रहा, मैं खाली आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ जो पॉसिबल है। इसके ऊपर गया जाता हूँ, और यहाँ पे अपने ये कर सकते हैं कि यहाँ पे अपने को अगर लगाना हो तो वी कैन गो फॉर दैट। स्टाइल में जाके, टाइपोग्राफी में जाके म्याओ सब हेड कर देंगे। स्टाइल देखिए वो हो गई। कलर चेंज करना है, इजी। इसका कलर मुझे सेम करना है, स्टाइल सेम करनी है, वहां पे मैं जाऊंगा सीधा टेक्स्ट कलर, म्याओ ऑरेंज, टाइपोग्राफी। अब आप देखेंगे सारे की स्टाइल एक जैसी हो रही है। इसमें आते हैं, अब मान लीजिए उससे भी इजी तरीके से करना, तो आपको आई शो यू मच चीजें भी। राइट क्लिक, मैंने इसको कॉपी किया, आप देख पा रहे हैं कॉपी किया मैंने इसको। यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक, पेस्ट स्टाइल। ये फॉन्ट देखिए ऑटोमेटिकली वही हो गया। कलर भी आप देखेंगे तो वही हो गया, और ये अपडेट करने से सब जगह अपडेट हो गया। सो फॉर टुडे आई सपोज सो मैंने आपको जो जो चीज समझाया उसकी थोड़ा समराइज कर लेता है। सो व्हाट हैव आई टॉट यू टुडे? क्या क्या समझाया आपको? मेनका ने आपको क्या समझ में आया? मेनका, So what is difference between website, web pages, hosting, domain? अच्छा, आज अपने क्या बनाई? एक वेब पेज बनाई कि वेबसाइट बनाई? आज अपने web page, one page. We have created. We worked on the home page. Yeah, so we created a website, but Yeah. we created a home page. Yeah, we worked on one web page, but we created a website. Yes. Very right. अच्छा वेरोनिका, ये अपने
wordpress.org पे बनाई या wordpress.com पे बनाई? Where we have created this? .org पे. Yes, we used that org, लेकिन होस्टिंग कोई दूसरी थी. मैं एक फ्री होस्ट यूज कर रहा था जिसके ऊपर ये हमने बनाए हैं. तो ये Yes, होस्टिंग sir. दूसरी थी. तीसरा, राजू दुबे, हाउ मच, क्या आपने कितने पैसे पे किए आज? हाउ मच हैव आई पेड फॉर दिस साइट? कुछ भी नहीं सर, ऑल थिंग्स आर फ्री। कुछ भी नहीं, बिकॉज आई हैव यूज अप टिल नाउ जो भी प्लगइन्स यूज किया वो फ्री यूज किया, थीम यूज किया, होस्टिंग यूज किया, फीड यूज किया, सब डोमेन फ्री यूज किया. तो अगर आप में से किसी को इस तरह की बनानी है तो मोटा कुछ भी पैसे लगते. क्लियर? और यस आज सर। प्लगइन्स अपने कौन से यूज किए? विच आर द प्लगइन्स विच आई हैव यूज? कैन यू टेल मी करण, विच प्लगइन्स हैव यू यूज? Hello. हाँ, या यू ऑडिबल. क्या बोल रहे हो? Yeah, Elementor हाँ, and Header, footer, header, footer, and Astra. starter template. स्टार्टर टेम्पलेट्स. और कौन से प्लगइन को मैं आपको चला के दिखाया था आज? कौन से प्लगइन्स को यूज करके दिखाया मैं आज? 3 प्लगइन्स थे, इसमें मैंने कौन से को यूज किया? Elementor use. वेरी गुड, एलिमेंट यूज किए. और Starter template. स्टार्टिंग में स्टार्टर टेम्पलेट से मैंने स्टार्टर टेम्पलेट से एक टेम्पलेट लिया, राइट. दूसरा प्लगइन में जो यूज किया वो एलिमेंट है जिससे मैंने एडिट किया. तीसरा प्लगइन है हेडर फूटर. मैं वो अभी तक छुआ नहीं हूँ, राइट. सो आई जस्ट टेल यू व्हाट इट इज एंड व्हाट इज आउट. इस वेबसाइट को अपने अपडेट कर दिया. अब वापस मैं आपके पेज में, मेन पेज में चला जाता हूँ. इसको एग्जिट करने का तरीका है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा. एग्जिट टू डैशबोर्ड आया. आपने कितने प्लगइन इंस्टॉल किए थे? हु कैन से? 3। अभी कितने होने चाहिए वहां पे? पक्का? मैं बोलूं ज्यादा होगा तो लेट्स. नॉट पॉसिबल सर, ज्यादा हो ही नहीं सकता। सर अभी पॉसिबल है सर. देखिए ठीक से, अच्छे से देखिए. So you are not presenting. ओ सॉरी Your सॉरी screen सॉरी sharing is off. सॉरी 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 मैं आपको स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा था. वेरी वेरी सॉरी. मैं अभी आपको प्रेजेंट करके दिखाऊंगा. मैं आपको शेयर करके दिखा रहा हूँ. ये जाते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड को मैंने ओपन किया. देखिए एक सेकेंड, अपनी डैशबोर्ड आ गई. प्लगइन्स पे जाते हैं. दिखाई दे रहा है ना आपको? कितने प्लगइन्स है? Yes, sir. कितने? 4. फोर्थ कौन सा है? WP फॉर्मूला है ये कहाँ से आया? बाय डिफॉल्ट आता है. सर ये एंट्री करेक्ट करेगा मेरे. जिस टाइम आपने स्टार्टर टेम्पलेट्स इंस्टॉल कर रहे थे वो स्टार्टर टेम्पलेट्स बैकग्राउंड में ये एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहा था. तो अगर मैं उस टाइम ये एलिमेंटर, हेडर, फुटर, स्टार्टर टेम्पलेट्स, WP लाइट कुछ भी नहीं इंस्टॉल करता तो भी वो थीम अपने आप ही इंस्टॉल कर देती. जब आप वो यूज कर रहे थे उसको स्टार्टर टेम्पलेट्स को, तो अगर मैं एक्स्ट्रा को इंस्टॉल करता उसके बाद चालू होता है. नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगा. विदाउट डूइंग दीज थिंग्स वो अपने आप ही इंस्टॉल कर देते हैं. ठीक है. कुछ थीम्स की जब आप सेटिंग्स करते हैं तो बैकग्राउंड के अंदर अपने आप ये प्लगइन्स लेके आ जाता है. मैं अभी तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड में नहीं है, मैं बहुत ऊपर में है. मैं आपको अंदर में भी जाके नहीं समझाया कि व्हाट इज वर्डप्रेस एंड ऑल. या यस, बहुत है लोग का माइक ऑन है सर. हाँ मैं माइक बंद आवाज लैग कर रहा है. सॉरी. थैंक यू सर. पेजेस अपने 4 क्रिएट किए. 3 वी हैव इंस्टॉल्ड एंड 4th हैज बीन इंस्टॉल्ड बाय. अभी तक जो भी है ये पेजेस है. अभी तक आपने पोस्ट यूज नहीं किया. ये पोस्ट्स है. अभी तक कितनी पोस्ट बनी हुई है? एक पोस्ट है. ये है हेलो वर्ल्ड पोस्ट बनी हुई है. ये बाय डिफॉल्ट बनी हुई है. इसको अपने अभी तक बनाए नहीं है. तो इसके बारे में हो सकता है सेकंड नहीं तो थर्ड क्लास में अपने आएंगे जिसके अंदर अपने पोस्ट क्रिएट करेंगे. अब इसके बाद आते हैं हेडर एंड फुटर. ये कैट का पेज तो चेंज हो गया, डॉग का पेज चेंज हो गया, कैट का बन गया. इसमें हेडर पोर्शन आप देख सकते हैं. कौन सा वाला हेडर पोर्शन है आपको दिखाई दे रहा है? सर जहाँ पे लोगो है. यस सर. ये वाला जो हिस्सा है ये हेडर है और नीचे वाला जो हिस्सा है ये फुटर है. देख पा रहे हैं? यस सर.
अब मैं हु वी आर पे क्लिक करता हूँ, हु वी आर वाले पेज में आएगा। तो ये हेडर है, सॉरी इसमें लोड करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसका फुटर सेम ही आएगा। सर्विस प्लेसेस पे क्लिक करते हैं, टॉप पोर्शन सेम है, बॉटम पोर्शन सेम है। गेट इन टच पे क्लिक करते हैं, टॉप पोर्शन देखिए सेम है और बॉटम पोर्शन सेम है। देख पा रहे हैं? यस सर। तो इसको बोलते हैं वेबसाइट का हेडर एंड फुटर। ये पेज के साथ नहीं होते हैं, ये अलग बनते हैं। और ये जहाँ चेंज होते हैं, 500 के पेज होते हैं और सबके अलग अलग हेडर होता है, तो जैसे आपको 500 पेज में अलग अलग चेंज नहीं करना पड़ता है। आप एक ही जगह चेंज करते हैं तो सब जगह चेंज हो जाते हैं। अगर आप एक जगह चेंज करते हो तो सब जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आई शो यू एक तो चेंज करके। इसके लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ यहाँ पे वर्डप्रेस में, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड्स, और डैशबोर्ड्स के अंदर अपने हेडर एंड फुटर्स में जाते हैं। थीम बिल्डर, तो मैं किस में आ गया है? ओ सॉरी, मैं एलिमेंटर की थीम में। ये एलिमेंटर का जो थीम बिल्डर, इसके जो टेम्पलेट्स है, आई कैन ओनली यूज वंस देयर। मेरे हिसाब से इसका चेंज हो गया। अच्छा, इसका कस्टमाइजर से जाना पड़ेगा। प्रीवियसली देयर वाज अ हेडर एंड फुटर देयर, बट राइट नाउ प्लगइन्स में जाते हैं, प्लगइन्स, हेडर एंड फुटर, व्यू डिटेल्स। This shows me how to do it, installation screenshots, appearance में, okay. अपीयरेंस में हेडर एंड फुटर ब्लॉक्स देख पा रहे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल? हाँ, पहले यहाँ पे होता था, अभी अपीयरेंस में हेडर एंड फुटर ब्लॉक्स यहाँ पे है। तो ये अपने को बता देगा कहाँ पे। यहाँ पे साइट का फुटर बना हुआ है। क्या चीज बनी हुई है? फुटर। इसको हम एडिट करते हैं। इसको भी एलिमेंटर से अपने एडिट कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है? ये डॉग का फोटो दिया हुआ है, और इसको अपने को सेट करना है। इसकी जगह क्या सेट कर सकते हैं अपने? एक कैट की फोटो यूज कर सकते हैं। ये वाले कैट। अब ये ट्रांसपेरेंट कैट नहीं है तो थोड़ा सा अलग लिखेगा। ट्रांसपेरेंट कैट होती तो ट्रांसपेरेंट होता, दैट वाज अ बेटर पिक्चर। लेकिन मैं खाली आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ ये हेडर फुटर में इफेक्ट क्या करता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये इस तरह का हो गया। एंड व्हेन आई गो टू द पेज, वुफ एंड पफ, ये, और जो यहाँ पे जो डॉग की फोटो थी उसकी जगह यहाँ पे कैट की फोटो आ गई। इसके नीचे का जो स्टाइल है या इसके नीचे का जो पोर्शन है, ये बेसिकली इसका कस्टमाइजर से हैंडल होता है। ये एक्स्ट्रा थीम में होता है, नॉर्मल में नहीं होता। नेक्स्ट डे आपको जो थीम्स दिखाऊंगा तो उसके अंदर ये फुटर हेडर सब वहां से बनेंगे। इसके अंदर ये बेसिकली ये जो बना हुआ है हेडर और फुटर, वो इसके थ्रू बना हुआ है। यहाँ पे लोगो, प्राइमरी मेनू, ट्रांसपेरेंट हेडर, जो जितना भी है यहाँ पे दिखाया हुआ है। लेकिन जो दूसरा होगा उसमें अलग तरह से बने जाएगा। इसमें जो लोगो है, देखिए यहाँ पे लोगो लगाया हुआ है। दिस लोगो इज द, इफ आई क्रिएट अनदर लोगो, अनदर लोगो विल कम हियर। मेन्यू यहाँ लगाया हुआ। अगर मैं लोगो को यहाँ से यहाँ मूव कर देता हूँ तो आप देखेंगे लोगो यहाँ पे आ गया।
इफ आई पुट लोगो हियर, तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ चेंजेस हो रहा है। यस सर। मैं जैसे ही पब्लिश करूंगा आपको जो पेज है वो किस तरह का हो जाएगा। लोगो यहाँ पे आ गया, टेक्स्ट यहाँ पे, और खाली इस पेज में नहीं है, हर एक पेज में हो जाएगा। एवरी पेज हैज चेंज्ड। अब जैसे यहाँ पे कुछ इमेज है जिसकी प्रॉब्लम है, मैं एडिट विद एलिमेंटा करता हूँ और इस पेज को भी आपको एडिट करके दिखाता हूँ। देयर आर मेनी मेनी वेरी वेज टू एडिट। अपने पेजेस में जाकर कर सकते हैं, पेज के ऊपर में अगर लॉगिन किए हुए तो एडिट विद एलिमेंटा से कर सकते हैं। यहाँ पे एक इमेज है जहाँ पे नहीं है, तो मुझे ये इमेज डालनी है, तो आई जस्ट गो टू, जरूरी नहीं पिक्साबे से हर बार अपलोड करें, इस इमेज को अपने रीयूज भी कर सकते हैं। So if I want to reuse this image, I can just simply insert this here और ये इमेजेस यहाँ पे आ जाएगी। इसमें अगर स्टाइल मुझे चेंज करनी है, मुझे वो वाली पुराने वाली स्टाइल चेंज है, तो टेक्स्ट कलर वहाँ से मैंने जो लिया था वो कलर यहाँ पे भी स्टोर्ड है, और टाइपोग्राफी मैंने वहाँ पे किया था वो यहाँ पे स्टोर्ड है, पूरी डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएगी। ओके, सो फॉर मी आई सपोज सो आज के लिए एक दिन में काफ़ी चीज़ें मैंने करा दी, और ज़्यादा मैं जाऊँगा तो फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डू नॉट वांट टू गो टू कॉम्प्लिकेटेड इन वन डे। आप में से किसको किसको क्या क्या क्वेश्चन है, आस्क मी आउट, सो आई विल बी गिविंग यू आंसर्स टू द क्वेश्चन। आदिति बब्बर, एनी क्वेश्चंस? आदिति, आर यू देयर? मिनिका, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, नेक्स्ट डे अपने जो करेंगे, अपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ई कॉमर्स वेबसाइट, वी विल बी यूजिंग कुछ गुड्स जो कार्ट में डालेंगे, कार्ट्स डाल के अपने सेल करने के लिए रख सकते हैं। तो नेक्स्ट दिन होगा दूसरा, मैं एलिमेंटर्स के अलग अलग पार्ट्स बताऊंगा, क्या क्या चीज होता है, किस हेडर क्या होता है, फुटर मतलब हेडर क्या, सेक्शन क्या होता है, कॉलम्स क्या होती है, विजेट्स क्या होते हैं। सो वील बी डिस्कसिंग एलिमेंटर इन डिटेल्स एंड वील बी क्रिएटिंग अ ई कॉमर्स वेबसाइट एंड वर्किंग ऑन इट। सो फॉर मी आई सपोज सो आज को आपको एक स्टार्टिंग मैंने दे दी, आपको पूरा एक वेबसाइट क्रिएट करके दिखा दिया। आई एडिटेड अ पार्ट ऑफ इट। एक्चुअली ब्यूटीफुल नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए ग्राफिक्स चाहिए, या आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए जिससे एकदम एग्जैक्ट फोटो। अपने फ्री फोटोग्राफ्स लेके उसको डाल के चेंज करके दिखा दिया। इट कैन बी चेंज। फॉन्ट्स के बारे में, उसके बारे में और डिटेल्स में अपने और अच्छे से नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, जब अपने वेबसाइट को क्रिएशन के बारे में और उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में डायनेमिक कंटेंट्स लूंगा। राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू दैट डायनेमिक कंटेंट्स राइट नाउ। नेक्स्ट डे आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन वूकॉमर्स। उसके बाद आई विल बी फोकसिंग इन पार्ट्स ऑफ एलिमेंटर्स एंड द विजेट्स व्हिच वी कैन यूज इट, और स्केच से पेज कैसे बनाते हैं उसके बारे में आपको दिखाऊंगा। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी? नो सर। आप लोग सबको समझ में आ रहा है? सर एक बार स्टेप समराइज। हाँ, स्टेप समराइज कर। हाँ सर। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा। मैं आपको वापस स्क्रीन में आ जाता हूँ, प्रेजेंस नाउ में। आई सपोज सबसे पहले मैं आपको लेके गया था होस्ट पे, फ्री होस्ट में करके मैंने आपको यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना दिखाया। उससे पहले मैंने आपको सब डोमेन बनाना सिखाया, क्योंकि हम लोगों ने एक सब डोमेन बनाए थे। आफ्टर सब डोमेन वी हैव क्रिएटेड अ ऐप। फ्रॉम दिस ऐप वी, अभी तो लॉगिन नहीं है, हैव टू लॉगिन अगेन। लॉगिन करने का, या मैंने आपको सब डोमेन बनाना सिखाया। सब डोमेन से मैंने आपको दिखाया वर्डप्रेस कैसे क्रिएट की जाती है। दिस वाज सब डोमेन, यू रिमेंबर इट? यहाँ पे हम लोगों ने ये म्याओ करके बनाया था। वंस वी क्रिएटेड इट, देन वी वेंट टू
सीधा सीधा इंस्टॉलर में जाके अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किए। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद वी केम टू द वर्डप्रेस डैशबोर्ड जो इस तरह की आई थी। उसके अंदर जाके हम लोगों ने प्लगइन इंस्टॉल किए 3 तो। उसके बाद हम लोगों ने थीम चेंज किए, वी चेंज इट टू एस्ट्रा, देन वी कस्टमाइज एस्ट्रा कस्टमाइज करने के बाद हम लोगों ने स्टार्टर टेम्पलेट में गए, वी चोज वन ऑफ द स्टार्टर टेम्पलेट्स, इंपोर्ट कंप्लीट किया उसको। आफ्टर दैट वी वेंट टू द पेजेस, होम पेज में गए एंड वी ट्राई टू एडिट होम पेज। दैट वाज द बेसिकली अ टोटल रिवीजन ऑफ विच आई हैव डन। उससे पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन चालू किया था, ओवरव्यू वाज देयर। आई विल गो थ्रू द ओवरव्यू अगेन फ्रॉम द स्टार्टिंग। इसमें मैंने आपको पहले बताया था इट इज ऑप्शनल, फ्री, अटेंडेंस कंपलसरी नहीं। आप में से जो आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मैं खाली सिखाने के लिए बेसिक वेब डेवलपमेंट की कवर करूंगा, टूल्स करूंगा, अब इसमें से कोई पेड कॉस्ट नहीं दूंगा। दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। आई टोल्ड यू व्हाट इज अ वेबसाइट, दे आर मींस इट इज कम्युनिकेशन ऑफ मल्टीपल पेजेस। एक पेज से वेबसाइट जरूरी नहीं बने, हो सकता है 1 पेज वेबसाइट हो, बट ज़्यादातर ज़्यादा पेज होते हैं। बहुत अलग अलग तरह की वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, नॉन ई कॉमर्स होती है, डायनेमिक वेबसाइट्स होती है। आई हैड अ टॉक, I told you the difference between a web page and a website. This is a web page and this is a website that which can have multiple pages. तो उसमें ब्लॉग का लेआउट अलग हो सकता है। कॉन्टेक्ट पेज ब्लॉग वी हैव नॉट टच टुडे, ब्लॉग वी विल डू नेक्स्ट डे। ब्लॉग शॉप ये दो अभी तक डायनामिक, और भी डायनामिक्स विल बी डूइंग इन डिटेल, बट दीज टू आर डायनामिक आउट हियर। देन आई टोल्ड अबाउट द करंट स्टेटस, 33% नियरली, मतलब 1/3 करीब इज वर्डप्रेस ऑफ द टोटल मार्केट शेयर। Then domain and hosting, I told you about the domain name and hosting. उसके बाद मैंने कहा कि hosting is space and domain is the name of the domain. I told you what is the URL, what is the protocol, domain name, subdomain and marketing. जैसे अपने इसके जो म्याओ का बनाए हैं तो मैं किसी से पूछना चाहूँगा, सोनाबा, टेल मी व्हाट इज मीन्स आज इसके बारे में, तो अपना डोमेन नेम क्या था आज? सोनाबा, शामिम, आर यू देयर? Yes, sir. डोमेन नेम क्या था? meow dot is best dot in. कोई मुझे सही डोमेन नेम बता सकता? सही डोमेन नेम क्या था? isbest.net isbest.net डोमेन नेम था। म्याओ वाज अ सब डोमेन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डोमेन इज isbest.net। अपने डोमेन लिए नहीं, डोमेन अपने को खरीदना पड़ता है। इस बेस्ट में बहुत सारी साइट्स बन सकती है। तो सब डोमेन वाज म्याओ, प्रोटोकॉल वाज HTTP। उसके बाद जो पेजेस होते हैं, उसमें जो पेजेस होते हैं, मैं आपको पेजेस दिखाता हूँ। जैसे ये म्याओ का है, सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे पेजेस आएगा, म्याओ इज बेस्ट.net सर्विसेज वाला पेज आ गया। गेट इन टच करेंगे तो कॉन्टैक्ट वाला पेज आ जाएगा। अब देख पा रहे हैं स्क्रीन? तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया पहले कि क्या क्या होता है, किस तरह से पाथ होता है, किस तरह से बनाया जाता है। CMS में मैंने बात किया कि व्हाट इज द CMS, इट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग वर्डप्रेस इन दैट। वर्डप्रेस में .com और .org आते हैं। .com में आप सीधा वहाँ बना सकते हैं, .org में आपको दूसरे वेबसाइट्स, वेब सर्वर्स में बना सकते हैं। और इसमें प्लगइन्स भी यूज़ कर सकते हैं। .com में प्लगइन्स आप पेड में ही यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप फ्री में भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने फ्री में प्लगइन्स यूज़ करके दिखाया था। उसके बाद मैंने डैशबोर्ड के बारे में बताया था, जो डैशबोर्ड अपने वहाँ पे दिखाए हैं। तो अलग अलग में अलग अलग थोड़े बहुत सेक्शंस होते, मतलब पोर्शन होते हैं, मेन्यूज होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मेन्यूज होता है। उसके बाद मैंने प्लगइन्स के बारे में बताया था, एंड वी हैव इंस्टॉल्ड 3 प्लगइन्स, जिसमें से ये 2 हैं। उसके बाद मैंने थीम्स के बारे में बताया था, और एक एक्स्ट्रा करके थीम हम लोगों ने इंस्टॉल की। एलिमेंटर प्लगइन्स क्या थोड़ा सा मैंने आपको एक दिखाया था, व्हाट इज इट, और इसका और डिटेल में आई विल बी टेलिंग यू लेटर। सो मोर लेस इट इज 6:55, 5 मिनट बाकी है। आई लाइक टू मीन्स कंप्लीट बिफोर द एक्चुअल टाइम इज फिनिश्ड। क्योंकि क्या होता है, सबकी अपनी अपनी टाइम की वैल्यू है। आई डोंट वांट टू टेक एक्स्ट्रा टाइम।